تو اسٹوڈنٹ لائف میں جتنا آپ کر سکتے ہیں ایکسٹرا، وہ آپ پھر پروفیشنل لائف میں جا کے آپ اتنا نہیں کر سکیں گے. زندگی میں ایسے مواقع کبھی نہیں آتے کہ آپ کبھی جا کے فارغ ہو جائیں اور آپ ایک اسپیسیفک اس کے لیے ٹائم نکالیں. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز، آپ اپنی اسٹڈیز اور اسی کے ساتھ آپ ٹائم نکالتے رہیں. ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہو جس طرح انڈیا کے ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے، اس طرح پاکستان میں بھی ایک ایسا چینل بنے کہ اس میں انجینئرنگ ریلیٹڈ نالج ہو، کوالٹی کانٹینٹ اس میں ہو. تو آپ نے اگر کچھ ایکسٹرا کرنا ہے، کوئی دل کی آپ نے بات سننی ہے، کوئی ہابی آپ نے پرسو کرنی ہے، یا کوئی اور اسکل آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے یہی ٹائم ہے. دس از دا موسٹ سوٹیبل ٹائم. ڈونٹ بی ہیپی ود ایوریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں تمام سی ایس ڈی انجینئرنگ اکیڈمی کی ٹیم کی وساطت سے آپ لوگوں کو اس سی ایس ڈی انجینئرنگ اکیڈمی کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پر کہ اس سیریمنی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنی طرف سے میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کامیابیاں عطا فرمائے. پروگرام کے باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں برادر تیمور خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور تلاوت کے نماز پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. آپ لوگ کو ایسے ہی پتہ ہے کہ سی ڈی انجینئرنگ اکیڈمی ہے کیا اور اس کا ان کا مقصد کیا ہے، لیکن ایک بریف انٹروڈکشن دینے کے لیے میں خالد بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اسٹیج پہ اور آپ کو تھوڑا سا بریف کریں. میں بہت مشکور ہوں اپنے اساتذہ کرام کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہمارا جو چینل کا ہم نے جس طرح انیشیٹ کیا ہے تو اس کی ہسٹری ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہو جس طرح انڈیا کے ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے بہت بڑے چینل ہیں، اس طرح پاکستان میں بھی ایک ایسا چینل بنے کہ اس میں انجینئرنگ ریلیٹڈ نالج ہو، کوالٹی کانٹینٹ اس میں ہو. تو اس حوالے سے میں نے یہ انیشیٹو لیا. مجھے جو چیز سمجھ آ رہی تھی میں نے کہا کیوں نہیں میں اپنے دوستوں کو بھی سمجھاؤں. ہم گروپ اسٹڈی کرتے تھے ہاسٹل 5 یا 4 میں، تو لوگوں کو بہت زیادہ شروع میں بہت زیادہ بندوں کو مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر میکینکس میں. مجھے میتھس میں بہت مسئلہ تھا، تو ایک بندے کو جس کو میتھس آتی ہے اس کو میں نے ساتھ لیا. تو ہم نے یہ شروع کیا. انشاءاللہ آگے بھی جس طرح کورسز آ رہے، اسٹرکچرس کے آ رہے یا ڈیزائن کے کورسز ہیں، ہم محنت کریں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس طرح بڑھاتے رہیں گے. اور اس کے بعد ہم یہاں سے جب فارغ ہو جائیں تو سائٹ پہ جائیں گے، سائٹ ریلیٹڈ نالج جو ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہم شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہو، کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے باہر، انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کریں گے. تو اس کے بعد میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہم وہاں پر چینل پر جو بھی آپ لوگ کو نالج پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم انہیں اساتذہ سے سیکھتے ہیں. فہیم صاحب سے میں کلاس میں یہ ہر کلاس میں سر مجھے ڈانٹتے اور میں بھی وہ خفا نہیں ہوتا.
सर के लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन रेडी किए होते कि ये आपने मुझे कराने, फिर आखिर में सर को पता चल गया कि ये तो आप 6 के लिए कर रहे हो, लेकिन बस बुक भी साथ रीड करते रहे। मैकेनिक्स का तो स्लाइड में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस हम बुक देते थे, उसमें ढंग से समझ नहीं आती तो सर से सीखते थे। इस तरह सर में हम सर से सीख रहे, बाकी भी जितने सब्जेक्ट है अरशद साहब से सीख रहे। यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड टीचर है, तो बस शुक्रिया आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो कल रात ही मालूम हुआ कि इस किस्म की एक्टिविटी है। मैं असल में ये आज प्रैक्टिकल के हवाले से इनको बता रहा था कुछ के प्लास्टर ऑफ पेरिस लाएँ ताकि ग्राउंड में इसकी लेआउट करें कल की, तो उस लिहाज से इन्होंने फिर बात कर दी। लेकिन एक बात जो जनरली जिससे खुशी होती है, हमें भी होती है, सबको भी होती है कि आज के दौर में जिसमें इंसान जो है इतना इंडिविजुअल पोजीशन पे किया हुआ है कि आप यकीन माने कुरान पाक की एक आयत है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इंसान जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको इंसान को हमने पैदा ही मुशक्क़त में किया है। मतलब ये कि और दूसरी जगह पे एक और इरशाद फरमाते हैं कि लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़, कि दर्जा बदर्जा आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं। और फिर मतलब है कि एक और जगह पे भी इस तरह है कि पहले कहते कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, मीन्स के पहले हम उसको हमने बड़ी खूबसूरत से पैदा किया हुआ है और उसके बाद उसको फिर हम ऐसी जगह पे अस्फ़ल साफ़िलीन के उसको जानवरों से भी बदतर हो जाता है, मतलब बोझ हो जाता है कम्युनिटी के ऊपर। तो आज के दौर में इंसान इसी मुशक्क़त दौर में और फिर सोशल मीडिया और इन चीज़ों की वजह से हम इतने डिस्पर्स माइंडेड हैं, इतने हमारी मतलब है कि हम एक चीज़ के लिए हमारे बीच में से यगामगत नहीं है 10-15। दूसरी बात यह कि फिर आगे सोशल मीडिया के जहर में फिर सियासी जहर इस उम्र में जिसमें आप जज्बाती उम्र है एक बंदे की जो है ये जज्बाती उम्र है और इसमें फिर सियासी इख्तिलाफात और राय के इख्तिलाफात जिसका बर्दाश्त करना इस सोसाइटी में अब महाल हो गया है जिसके ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल की कहानी मैंने इधर से इसलिए शुरू की कि ज़िंदगी में ऐसे मौके कभी नहीं आते कि आप कभी जाके फारिग हो जाए और आप एक स्पेसिफिक उसके लिए टाइम निकालें। ये इसी तरह होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़, आप अपनी स्टडीज़ और इसी के साथ आप टाइम निकालते रहे। मतलब है कि मैंने ये छोटी सी आयत आपके सामने वो की, इसकी मैं थोड़ी सी फ़हीम साहब बैठे हुए हैं लेकिन थोड़ी सी मैंने इसकी फर्दर उसको बोली। देखिए हम स्कूल में थे तो हमें ये कहा जाता था कि अच्छे नंबर लेके कॉलेज में चले जाए, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, अब यूनिवर्सिटी लेवल से आगे मतलब है कि वो स्टेप्स के उसके बाद फिर जॉब के लिए, फिर फैमिली लाइफ, फिर एक क्रेज आएगा, फिर एक टाइम आएगा कि उसके बाद जो है सारा कुछ मुकम्मल होने के बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि बॉडी की डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी एक एज के बाद से। अल्लाह करे कि ये 1000 जो है 10,000 में कन्वर्ट हो, उसके बाद 1 लाख में कन्वर्ट हो, उसके बाद मिलियंस में कन्वर्ट हो। ये हजार में अगर केक हम खाने लगे तो ये तो इंशाल्लाह हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक केक हमारे फिर आपको अंदाजा हुआ होगा कि यार मैट्रिक में तुम्हारे पास ज्यादा टाइम था, अभी तो नहीं है। फिर आपको ये आपकी काम ख्याली होगी कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास टाइम ज्यादा होगा, अभी आपके पास इधर भी आप यही सोच रहे हैं कि टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट लाइफ में जितना आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा वो आप फिर प्रोफेशनल लाइफ में जाके आप इतना नहीं कर सकेंगे। अभी सब इख्तियार आपके हाथ में है। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप तो बस जॉब में तो आप बस कैदी होंगे ना, तो टाइम आपके पास फिर नहीं होगा। तो आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है, कोई दिल की आपने बात सुननी है, कोई हॉबी आपने परसू करनी है या कोई और स्किल आपने डेवलप करना है, उसके लिए यही टाइम है। दिस इज द मोस्ट सूटेबल टाइम और आप आज से ही शुरू करें। कल मैं आपने भी शायद देखा हो एक बड़ा खूबसूरत सा किसी ने वो लिखा था कि 1 square 365 1 raised to power 365 is equal to what? 1। लेकिन अगर आप कहें 1.01 raised to power 365, 0.01 का मतलब है 1% ना, 1.01 raised to power 365 करें तो it becomes 37 point something। तो by the end of a year
you would have improved 37%, which is huge thing ना. तो अगर आप छोटे से steps भी लेना शुरू करें किसी भी स्किल के हवाले से, तो by the end of the year आपको पता चलेगा कि यार you have learned a lot in that field ना. तो दूसरी बात ये है कि टाइम मैनेज करने की बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं. तीसरा फाइनल पॉइंट मेरा ये है कि आप डोंट बी हैप्पी विद एवरेज ना. मैंने एक दफ़ा शिकायत की थी स्टूडेंट लाइफ में अशरफ साहब को कि सर ये टीचर जो है वो मतलब कुछ खास नहीं पढ़ा रहे हो, मैं सीख नहीं पा रहा उससे. तो उसने कहा देखो एवरेज स्टूडेंट जो है वो टीचर की तरफ सिर्फ देखेगा, अच्छा स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट टीचर से आगे देखेगा. गुड स्टूडेंट्स गो बियॉन्ड टीचर. अगर हम आपको बस बोर्ड पे जो स्टूडेंट ने टीचर ने जो चीजें पढ़ाई हैं और आप उसी पे खुश हैं, तो फिर तो नॉलेज आगे नहीं जाएगा ना. अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो खालिद की तरह होगा, वो एक्स्ट्रा किताब पढ़ के आया करेगा, ठीक है ना. 5 सवाल जो उसने रेडी कर रखे थे. तो आप और लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत करनी होती है. जो आप एवरेज लाट से ऊपर आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ज्यादा आपको नहीं करना पड़ता. बस सिर्फ ये कि आप पहले से रिव्यू करें, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देखें, बुक खोलें, थोड़ा सा 15-20 मिनट आप गुजारें, तो यू गो अबव द एवरेज लाट. तो ये आप एक जिंदगी का मकसद बना लें कि मैंने एवरेज पे नहीं रुकना, आई हैव टू गो वन स्टेप फर्दर. तो जब आप इस मेंटेलिटी से कोई भी काम करेंगे तो आप अपनी फील्ड में जो है वो एक्सेल करेंगे, ठीक है. तो फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट और अल्लाह करे कि ये कामयाबी जो है वो बहुत सारी फ्यूचर की कामयाबी के लिए पेशखैमा साबित हों. और हम ये भी दुआ करते हैं कि आप में से जिनमें इस तरह और भी अगर इस तरह के स्किल्स हैं उसमें भी अल्लाह को तौफीक दे इस तरह करने की, ठीक है. एक आखिरी थोड़ा छोटा सा सेशन रहता है कि ये जो सीडी का जो पूरा वो टीम है हम आप लोग के सामने वो इंट्रोड्यूस करेंगे. तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए और खाली इंट्रोड्यूस कराएंगे. वेरी गुड. बुराक जो है वो मिस करवा रहे हैं. क्या मैथमेटिक्स. अच्छा वेरी गुड. जो है वो मतलब बहुत तगड़ा है. अभी इसको हमने जोर से जबरदस्ती लाए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगे. आज केक खाएगा तो अपनी स्ट्रक्चर पढ़े हैं. और मैं एमओएस 2 ये जो है प्रोग्रामिंग रिलेटेड एडवोकेट पाइथन वेरी गुड. आईटी में डिप्लोमा भी आज रेडी किया हुआ है. अच्छा और यूट्यूब के जो जितने भी सेटिंग है वो ये कंट्रोल है. जबरदस्त. वीडियो को यार ये लोग ही क्यों भाई Uy.